Careers Trainers and Consultant. My name is Dr. Mohammad Shahir Wakar, and I am the Group President of 3D Group. 3D Group has multiple organizations, where one is 3D Educators, which is totally involved in the training and development, and we have been like since 1997. We have a different locations in Pakistan, Sri Lanka, Somalia, and in UK. And I have been involved in training and development since 1991. So, and in consulting as well. Almost working around the world and implemented more than 1500 projects. So last I was basically a global head of the one of the organization in UK, Lloyd Groups, when it's one of the like area that is related to the project and its handling and portfolio handling. So now basically the organizations, another organization are Perceptron Global, that is a peer AI, GRC and development organization in UK, Vertex Solution in Pakistan, AI System Soft in USA. All are working in same domains. Okay, and almost like providing the AI solutions in different type of AI solutions related to the construction world, related to the like port world, related to the like hospitals and medicine side. So these are the like areas we are working on it. So this now project management. This is like almost like I think it's 437th batch, right? And might be like 20 to 23,000 people are already taking this course from me on the different locations of the world, not here in Pakistan as well, but under the platform of 3D educators. So this program is very important program. We are not only going to prepare you for the PMP certification. The content of the program which I had developed, because I had done this PMP in 2001, and Lucy Gray actually was my trainer, and she's a remarkable, it's like like the experience and its style and you get its methodology. So I already had worked with her, so it's a remarkable lady. So she actually had trained us, and we have done in 2001. It's for PMBOK 3 actually at that time, but now uh, PMBOK 7 is in the market, and a different thing has been changed. Some some content actually are increased. Some things are on need basis are included. So as far as concerned the PMI actually has initially has only one certificate, that is PMP, which is now very renowned certification. Every person should have to do this certification, because without this certification you cannot opt the job in the market now. Whatever your discipline is, whatever your domain is, it is nothing concerned with it. But actually we have to understand what is the like corpus of the PMP. Okay, so we are going to discuss it about it further. What I had did in this course, added some more thing. You are not only going to prepare for PMP, you are also going to prepare 4 more certifications. If someone is fresh graduate and he hasn't have any any experience in the market and is fresh, so he can come directly with the CAPM, through CAPM, Certified Associate in Project Management, which is the PMI certification, and is geared up to the PMP. If you pass the certification on initial level, actually you have been connected with the body, international body. Body has different different role. Body is doing on another side as well, not on this side. So they are all not only going to support you, they are also help you in your career as well. How they can help, we can discuss later, that how they help you. But obviously when you are connected on initial level, when you are in just after your university, and you have got an international certification, so actually the door is open in the market, right? And it's very early you can open it, and you also know about it, and what actually the methodology and the framework or the curriculum of the PMI, right? So first of all, CAPM for fresh graduates.
pass the examination, for example, it's about $150 you have paid for the examination, and you passed. But when you go to the PMP examination, so the exam fees of the PMP is deducted from your CAPM fees. So then you can only pay to, like, for example, let's say it's a $400 maybe. So $150 you already had paid. So it's a cut down to $250. Okay. So nobody knows actually that is. They said, okay, if you already paid once, then we can do it twice. No, it's not like that. Second thing, one of the another certification of the PMI is Project Schedule Management Professional. So you are also going to prepare in this course for the Project Schedule Management Professional. PMP is the third one. You are also going to prepare for PMP. And last, you are going to prepare for uh, project risk management professional. Okay, last certification, which in this course you can also prepare yourself, because the content of the project risk management is highly rich. So I develop in the same course. You can be understand it and you can already do it by yourself. Fifth one, you are also going to prepare another certification which is not concerned with the PMI. It's basically from the PECB Canada. Okay, they are offering one of ISO 21502 lead project manager. Okay, and I am the, like, authorized partner of PECB Canada, trainer, and also global speaker as well. And I'm holding the 50 countries affiliation of the PECB. PEC one of the largest organization with respect to the ISO and other training. So if you can learn about it, you can also give the examination of the ISO 21502 as well. So 5 certifications actually you are prepared. And finally, if you are already enrolled in the Primavera, so you can understand how to use these methodology in the Primavera, and you will become a planning engineer actually. I am preparing you not only a PMI certification holder, but I am also preparing you as a planner engineer. Okay, so as far as concerned, the another aspect of this program, not only the certification preparation, why PMI and why PMP, and what is the advantages in your life as well as in your professional life. So we are going to discuss as well that not only the certification you can pass, but you can understand it how to implement. You can understand how to get the advantages through this methodology in the organizations. What are the advantages with respect to your side, right? And obviously the practically we are going to talk about each and everything. So प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, अब आते हैं हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एक डिफरेंट एस्पेक्ट पे। ये तो बात हो गई कि पीएमआई में मैं क्या क्या चीज़ें आपको कराऊंगा, क्या क्या चीज़ें होंगी। ना जब पहली दफ़ा पीएमआई ने लॉन्च किया इसको, ओके, कि आप इसको करें, तो उसने कुछ जुमले कहे। पहली बात उसने कही थी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हैज़ नो कंसर्न विद दी। सारे दुनिया के जो मैनेजर इंजीनियर से वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा भाई ये क्या हुआ, तो हमारे पास तो प्रोजेक्ट हो रहे हैं, तो और आप कह रहे हो इंजीनियर से ताल्लुक नहीं है। तो उन्होंने बताया कि इट्स अ सेपरेट एंड ठीक है, इट्स अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन। ये एक अलग दुनिया है
तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हैज इट्स ओन स्टैंडर्ड्स. ठीक है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हैज इट्स ओन processes. Project management has its own knowledge areas. ठीक है. यानी कि ये एक अलग सा मजमून है, इसकी एक अलग दुनिया है, इसके अपने स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है, इसके अपने प्रोसेसेस, अपने नॉलेज एरियाज है, अपना फ्रेमवर्क है. अगर हम ये सोच रहे हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ ऐसा है कि वो इंजीनियर से रिलेटेड करती, तो ऐसा नहीं है. ऐसी कोई चीज़ नहीं है. अब बात ये है कि स्टैंडर्ड क्या है, क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है. ठीक है. तो हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड क्या होता है. लेट्स से आपने कोई प्रोडक्ट बनाई, सुन ले, आपने एक प्रोडक्ट बनाई. ठीक है. सवाल मेरा है स्टैंडर्ड क्या होता है, आप डिफाइन करें स्टैंडर्ड क्या होता है. व्हाट इज स्टैंडर्ड. बेंचमार्क कुछ भी हो सकता है. मैं कहूँ यार मेरे घर का बेंचमार्क है, आप मान लेंगे. स्टैंडर्ड तो पूछ रहा हूँ क्या होता है. आप किसी हद तक सही है, लेकिन चीज़ें कुछ बदली चाहिए. स्टैंडर्ड, हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें, हम क्यों ऑप्ट करते हैं. स्टैंडर्ड वही होता है ना, और क्या होता है. हम क्यों ऑप्ट कर लेते हैं, वाई, और होता क्या है. जब होता है तो ऑप्ट करते हैं ना, कोई चीज़ होती है तो ऑप्ट कर रहे हैं, तो होता क्या है वो. स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड करते फिर रहे हैं. क्यों है. हाँ, जिनकी रिक्वायरमेंट तो कुछ भी हो सकती है भाई. एक आदमी कहे नहीं मेरी रिक्वायरमेंट तो ये है, आप गलत कह रहे हैं. ठीक है. वो एक बेस लाइन हो गई ना, एक बेस लाइन हो गई आपकी. मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ. ठीक कह रहे हैं आप. वो देख, आपने जो पहले शुरू में बात की थी ना कि बेंच मार्किंग, ये बेंच मार्किंग है. बेंच मार्किंग जो है वो स्टैंडर्ड हो सकती है, लेकिन एक्चुअली हम तो बात कर रहे हैं कि बेंच मार्क क्या होता है. और अगर हम कोई बेंच मार्क अपना सेट कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो क्यों कर रहे हैं. और अगर हमें किसी ने ये कहा कि तुम ये वाला बेंच मार्क लेके लगाओ मिसाल के तौर पर कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड है, मैंने कहा यार यहाँ पर तो जूनिपर सॉरी जैकवर की जो है ना फिटिंग लगेगी.
इससे कम कोई फिटिंग नहीं होगी, ठीक है ना। तो एक्चुअली यू आर एक्चुअली सेटिंग अ बेंचमार्क एज अ जैकवर्ड, राइट, फॉर some target market. That is a benchmarking, that is not a standard. ओके, कि मैं किसी चीज को सेट कर रहा हूं किसी पर्टिकुलर टारगेट मार्केट के लिए, मैं झोपड़पट्टी वालों के लिए जैकवर्ड सेट नहीं कर रहा हूं, सॉरी टू से दैट। ठीक है ना, दुनिया भर में जो मार्केटिंग के बड़े बड़े ब्रांड मैनेजर्स बैठे हुए हैं, ठीक है ना, कि गुची गुची का एक जो है वो घड़ी मैंने खरीदी, नॉर्मल घड़ी 17 लाख रुपए की थी, और ये भाई टाइम तो वो भी दिखा रही है, ठीक है ना, टाइम ये भी दिखा रही है, ये भी अच्छी खासी महंगी घड़ी है। लेकिन बात क्या है कि आप के पास अगर बहुत पैसा है, दुनिया में बहुत सारे लोगों के बहुत पैसा है, एक्टिव पैसा, एक मार्केटिंग में टर्म यूज करते हैं कि जिनके पास एक्टिव मनी है, उनके लिए बेंच मार्किंग दुनिया सेट कर रही है मुख्तलिफ ब्रांड्स में। ओके, हमें मना नहीं कर रहे हैं, छोटी चीजें मिल रही है मार्केट में, उनके लिए भी ब्रांड, उनके लिए भी सेट हो रहा है बेंच मार्किंग। गरीब लोग कपड़े नहीं पहन रहे, गरीब लोग घड़ियां नहीं खरीद रहे। मैं आपको ऐसी घड़ी दिखाऊं 500 रुपए की मिलती है, आप पहचान नहीं पाएंगे कि रोलेक्स है कि नहीं है। और अब तजुर्बा, एक दुनिया ने एक तजुर्बा किया, उन्होंने एक बहुत ही सस्ती जगह से वही 500 रुपए की घड़ी खरीदी और एक बहुत बड़े आदमी को पहना दी। वो आदमी जब पहन के गया, उसने कहा कितने की घड़ी होगी, लोगों ने कहा सर 20 लाख रुपए की घड़ी है। तो वैल्यू जो है ना, वो असल में उस सेगमेंट की है, वैल्यू चीज की नहीं है, वैल्यू उस सेगमेंट की है एक्चुअली, ठीक है ना। तो हम अभी तो उस तरफ गए नहीं, हम तो ये मार्केटिंग साइड पे चले जाएंगे, बात करने चले गए तो हम बात कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड क्या होता है। तो अब स्टैंडर्ड के ऊपर हम एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, कि आपने एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की, ओके, आपने कहा मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ P1, देन वी कैन गो फॉर P2 एंड सो ऑन, Pn तक हमने एक चलते हुए गए और मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारा के एक प्रोडक्ट आ गई, प्रोडक्ट की एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई, ठीक है, लेट्स से वो 300 रुपये आई। अब जब अगर आपने एफएमसीजी में काम किया होगा तो आपको थोड़ा आइडिया होगा, जब कंपनी अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल लेती है, तो उसके बाद कंपनी अपनी प्रॉफिट ऐड करती है, ठीक है। तो कंपनी ने कहा यार हमारा प्रॉफिट 50 रुपये है, फिर उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है, वो 15% होती है तकरीबन, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वो तकरीबन 45 रुपीज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऐड हो जाएगी इसमें। उसके बाद एक होलसेल मार्केट की कॉस्ट होती है, ठीक है ना। तो होलसेल मार्केट की जो कॉस्ट है वो फिर इसमें ऐड हो जाएगी, जो कि 5%, मीनिंग कि 15 रुपये और, ठीक है। अब एक इसमें रिटेल कॉस्ट आएगी, वो खैर हम बाद में शायद करते हैं इसको। क्या आ गया, इसको ऐड कर लें पहले तो, ये कितने हो गए, 395 और 410। 410 अभी जो कॉस्ट आई है आपके पास, ये कॉस्ट एक्चुअली अभी भी पूरी नहीं है, क्योंकि इस पे आपने मार्जिन नहीं रखा रिटेलर का, ठीक है। तो इसमें हम ऐड करेंगे रिटेल प्राइस कॉस्ट क्या है, तो उसकी जो ये सब सब टोटल है समझ लो, और अब इसके अंदर अगर हम रिटेल प्राइस भी ऐड करें, तो कम से कम आपको रिटेल प्राइस इसकी जो ऐड करनी चाहिए वो 110 रुपये ऐड करनी चाहिए। तो इसकी जो एक्चुअल, अब इसकी अब मार्केट में जो रिटेल प्राइस कॉस्ट जाएगी, यानी कि रिटेल रिटेल का मार्जिन है ये, इसको मार्जिन कह सकते हैं, रिटेल प्राइस कॉस्ट। एक्चुअली आपने देखा होगा आम तो बाद में लिखा होता है आखिर में रिटेल प्राइस कॉस्ट, तो रिटेल प्राइस कॉस्ट ये टोटल प्राइस कॉस्ट होती है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि आपने 520 रुपये की ये प्रोडक्ट बनाई, ओके। अब आप इसे लेके गए मार्केट में, मार्केट वाले के पास पहुंचे आप,
आपने कहा भाई ये मैंने एक मेंस ब्यूटी क्रीम बनाई है, ठीक है, मेंस ब्यूटी क्रीम। अब इस मेंस ब्यूटी क्रीम को आपने रिटेलर के पास जाके पिच करना करवाया कि भाई बात करो इनसे कि ये हमारी प्रोडक्ट है और ये बड़ी बेहतरीन है, ये वाला है। उसने कहा कितना मार्जिन होगा? उसने कहा 110 रुपये तुम्हारा मार्जिन। डिस्ट्रीब्यूटर की तो प्राइस फिक्स है, असल रिटेलर का मसला है। अच्छा, 110 रुपये हमारा मार्जिन होगा, ओके। तो प्रोडक्ट दिखाओ, प्रोडक्ट देखिए, उसने कहना भाई मेरे पास तो ऐसी प्रोडक्ट पड़ी है और वो मुझे दे रहा है 410 रुपए की, ठीक है। वो 410 रुपए की मुझे दे रहा है, आप मुझे 520 रुपए की दे रहे हो। दूसरी बात ये कि आप मुझे 110 रुपए दे रहे हो, वो मुझे 150 रुपए दे रहा है, ठीक है। राइट, यानी उसको बेचने में 110 रुपए का आप फायदा देंगे, उसकी बेचने की तो 150 रुपए रिटेलर को मिलेंगे। अच्छा, और प्रोडक्ट भी इतनी सस्ती, यानी 150 रुपए यहां से निकाले तो कितने रह गए? 240 रुपए। 240 रुपए में आपकी प्रोडक्ट बन नहीं रही, 300 रुपए आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है, तो आप तो फैक्ट्री बंद कर दें अपनी। समझ रहे बात को आप? तो अब आप परेशान हुए, आपने कहा मैं क्या करूं, किस तरीके से मैनेज करूं ये, क्योंकि ऑलरेडी जब एक प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं और मुझे उसकी कॉस्ट सामने आ रही है और मार्केट में उसकी खपत ही नहीं है। मैं अगर मिसाल के तौर पर पेप्सी, सेवन अप, कोका कोला या कोला नेक्स्ट या फिजअप या फिजअप कोला नेक्स्ट और पेप्सी की कीमतों में फर्क आ जाए, ठीक है ना, वो कम में बेचने शुरू कर दें और आप जो है वो ज्यादा में बेचें, तो आपसे एक वक्त तक तो लोग लेंगे कि यार चलो कर्टेसी में ले लें, कि चलो यार वो मसला चल रहा है एक, वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट द प्रोडक्ट्स। मगर कब तक? जैसे ही आपको मौका मिलेगा यू विल स्विच, ह्यूमन साइकी है ना। तो अब आपको इसका मतलब है कि आपका कोई मसला है, आपको आप आए, उन्होंने कहा ऐसा करें, ऐसा करें, आप किसी कंसल्टेंट से बात करें, ठीक है, किसी कंसल्टेंट से बात करें और पूछें कि आपके पास क्या मसला हो सकता है, पूरी ओवरऑल आपकी वो प्रोग्रामिंग को देखें कि क्या हो रहा है। एक कंसल्टेंट अपॉइंट किया उसने, उसने कहा पहले तो मैं देखूंगा कि आप काम कैसे कर रहे हैं, क्या तरीकेकार है आपके काम का, आपकी फैक्ट्री में मुझे बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बैठ गया, देखने के बाद आपने देखा कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। प्रोसेस स्टार्ट हुआ यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद उसने कहा कि ये प्रोसेस ऐसे चलना चाहिए, या उसने कहा ये ठीक है, ये सही है, ये भी सही है, यहाँ तक ठीक है, पर यहाँ से यहाँ जा सकते थे। जो कंसल्टेंट हायर हुआ, उसकी बात नहीं कर रहे, कुछ भी उसकी अपनी मेथडोलॉजी उसने अभी अप्लाई की। अप्लाई करने के बाद उसने कहा जी अब आप इस प्रोसेस को चलाएं। जब उस प्रोसेस को चलाया तो प्रोडक्ट कॉस्ट 100 रुपये आ गई। अब ये उसने बताया कि ये जो आप फालतू के जो
काम कर रहे थे ना यहाँ पे, ये आपकी कॉस्ट को बढ़ा रहे थे। तो यार बात तो बहुत अच्छी कर रहे हैं आप, हम आपकी बात समझ गए, लेकिन ये तो आप कह रहे हैं, ठीक है आपने करके भी दिखा दिया, लोग तो ऐसे हैं ना, आप कह रहे हैं आपने करके भी दिखा दिया, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। उन्होंने कहा भाई ये तो अभी एक दफा चल गया, हो सकता है जब 20 दफा चले तो प्रॉब्लम कर जाए। भाई मैं नहीं कह रहा ये दुनिया में एक बॉडी है जिसका नाम है आईएसओ लेट से, और मैंने उसके ही बेंच मार्क स्टैंडर्ड्स को अप्लाई किया है, ठीक है, और रन किया है। अब आईएसओ क्या है? आईएसओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, इसका नाम है। हर मुल्क ना अपने लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें डेवलप कर रहा है दुनिया में, उसका नाम है। जैसे जर्मन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मशहूर है, ठीक है, ऐसे ही कई मुल्क कई एरिया के अंदर अपने प्रोसेसिंग में एक्सपर्ट हैं, और उस नाम से उस मुल्क के नाम का वजह उसकी वजह वजह शोहरत हुई। जैसे पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चर की वजह से मशहूर है, ठीक है ना, मतलब रुई है तो आप करेंगे ना कुछ, वरना क्या करेंगे, तो वो एग्रीकल्चर है, फिर टेक्सटाइल है। तो पाकिस्तान की लेबर बहुत एक्सपर्ट है, दुनिया भर में मानी जाती है। अब बात है कि हम सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, मैं कहूँ यार तुम ब्रिटिश स्टैंडर्ड यूज कर लो, मैं कहूँ तुम अमेरिकन स्टैंडर्ड यूज कर लो, तुम फला स्टैंडर्ड यूज कर लो। ये एक तो वो नॉर्मल स्टैंडर्ड है, फिर एक इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड है, तो वो इस पर दुनिया में काफी किस्म की वो एक समझ लें कश्मकश शामिल हो गई। तो ब्रिटिशर्स क्योंकि दुनिया में आखिर में उन्होंने राज राज किया, तो हर चीज ब्रिटिश स्टैंडर्ड से चलती थी पहले, बीएस 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 बी, आज भी सिविल इंजीनियरिंग में सारे बीएस के स्टैंडर्ड इस्तेमाल होते हैं। तो उन्होंने उसको एक बॉडी बनाई, आई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, स्विट्जरलैंड जेनेवा में, और 179 कंट्रीज से उन्होंने उसके मेंबर लिए, चाहे वो एक फर्म हो या एक इंडिविजुअल हो, और उसका ताल्लुक गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट करवाया, और उसके बाद उस फर्म से कहा गया या उस मेंबर से कहा गया कि जो भी चीजें हम करेंगे, आइए, कि जो भी चीजें हम करेंगे वो आपको हम देंगे, यानी दुनिया भर से एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोसेसेस की बात हो रही है कि हमने अच्छा काम किया हुआ है। हमने कहा चलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग रेलवेज के हम उठा लेते हैं, जर्मन से ले लेते हैं, जर्मन ने दे दिया हमें, लेकिन जर्मन को लोग पसंद नहीं करते थे, तो ऑप्ट कैसे करवाएं, तो आईएसओ को भेज दिया। अब उसने उसका पायलट रन किया 179 मुल्कों के साथ मिलके, हर मुल्क ने अपनी जगह 2-2 हजार दफा उसका पायलट रन करवाया कम से कम। अब जब पायलट रन हुआ तो आपके पास जो एक पुराना गेन था, यानी आपके पास गेन ए था, और एक आपके पास आया गेन बी आफ्टर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्टैंडर्ड्स। तो गेन बी इतना ज्यादा था गेन ए से कि एक आदमी कहे कि भाई तुम ये वाली गाड़ी ले जाओ, इसके अंदर तुम्हारे 2 लीटर खर्च होंगे, कहने मैं तो वही गाड़ी लेके जाऊंगा जिसके अंदर 50 लीटर खर्च होंगे। ये वही बात हो गई। तो मजबूर हो गए हम कि नहीं स्टैंडर्ड अप्लाई करें। ऐसे ही दुनिया भर में प्रोजेक्ट्स आज से नहीं हो रहे हैं। प्रोजेक्ट इंसान डे वन से, जब आदम अलैहिस्सलाम उतरे ना, तो उन्होंने अपना घर बनाया, पहला प्रोजेक्ट दुनिया का जो खाने काबा है। और इंसान की अकल देखें आप कि वो जाहिर बात है कि दुनिया के सबसे कदावर शख्स थे, पता है ना आपको, जितनी भी कौमें पैदा हुई हैं 27-27 फुट की, उससे भी ज़्यादा लंबे थे वो, यानी कि सबसे लंबे आदमी थे। तो
इंसान की अकल आप देखेंगे उसने वही चार कोने रख के उसको बैलेंस करके, पहले रेक्टेंगुलर था खाने काबा, वहाँ पे देखते हैं ना हतीम का एक एरिया दिखाते हैं, वो खाने काबा के अंदर का हिस्सा है, बाद में सऊदी अरब में उसको जो है वो चौकोर कर दिया, लेकिन वो पहले चौकोर था, रेक्टेंगुलर था, लेकिन बनाया रेक्टेंगुलर, यानी रेक्टेंगुलर एक स्क्वायर की शक्ल है ऑलमोस्ट, ठीक है, यानी कि बैलेंस सिचुएशन, बैलेंस में इंसान की अकल ये थी। फिर दुनिया में क्योंकि नजर आने वाले हमें चीजें कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड नजर आती है, हमें बहुत सारी चीजें जो प्रोजेक्ट है हमें नजर नहीं आ रहे, तो असल में प्रोजेक्ट हर वो चीज है जिसकी हम अभी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि वो क्या है, कि प्रोजेक्ट है क्या चीज, किसे कहेंगे प्रोजेक्ट, किसे क्या नहीं कहेंगे प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट की डेफिनेशन अब आज की दुनिया में चेंज हो गई। तो लेकिन जो भी चीजें डेवलप हुई, चाहे वो किसी भी एरिया के अंदर डेवलप होना शुरू हुई, वन बाय वन उसमें जिद्दत आ रही, उसके अंदर एडवांसमेंट आ रही। अब चाइना ने जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड में काम किया है, उसकी पूरी मैं किताब पढ़ रहा था, तो उसमें हैरान कुन चीजें, यानी दुनिया का सबसे लंबा पुल इस वक्त समुंदर के ऊपर, क्या न्यूयॉर्क ने बनाया होगा जो उन्होंने बनाया, और जो कंस्ट्रक्शन की उन्होंने पूरी, उसमें किताब में कंस्ट्रक्शन की पूरी स्टेप्स लिखे हुए कि कैसे उन्होंने उसको, सीशोर बहुत खतरनाक है, उनका सीशोर बहुत गंदा है, नॉर्दर्न एरिया है ना सारा, यानी कि हवा में झूल रहा है पुल, और बादल ही बादल है, यहाँ काम कैसे करें आप, नजर नहीं आ रहा, आप यूं मैं देख रहा हूँ आप नजर नहीं आ रहे, उस जगह के ऊपर उन्होंने वो कंस्ट्रक्शंस किए जो कि अनबिलीवेबल है, वो बिल्डिंग जो कि यहाँ पे शायद 6 साल में खड़ी नहीं होती, वो 6 महीने में खड़ी कर दी उन्होंने। मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया जर्मनी के अंदर, वो हमने बताऊंगा मैं उसको, वो भी ऐसी हुआ था, 6 महीने बिल्डिंग खड़ी होती, 40 मंजिला बिल्डिंग। कब की बात है, 19 नहीं सॉरी 2002। वी कैन डिस्कस क्या हुआ, लेकिन बात क्या है कि इसका मतलब क्या हुआ, वही सीमेंट, वही मटेरियल, वही चीज है, क्या ऐसी चीज है जो इतनी जल्दी कर रही है, मेथडोलॉजी, तरीकेकार, इम्प्रूव कर रही है। तो इसी तरीके से दुनिया में जो प्रोजेक्ट्स बने, तो प्रोजेक्ट्स बनने के बाद फिर एक सिविलाइजेशन आई, आपने कुरान में देखा, अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पता था कि नूह अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा होगा, उन्होंने अपने 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 जो नेक्स्ट आदम अलैहिस्सलाम के नबी है वो शीश अलैहिस्सलाम, शीश अलैहिस्सलाम उनके बेटे थे, पोते थे, पोते को उन्होंने कहा कि तुम नूह के कौम के साथ हो जाना, यानी नूह के साथ हो जाना, उनको पता था कि कौम तबाह होगी, तो अल्लाह ताला ने एक तबाही का जिक्र वहां किया, सिविलाइजेशन खत्म हुई पूरी, एक नई सिविलाइजेशन अल्लाह ने लाई। फिर अल्लाह ताला ने कुरान में और बहुत सारे जिक्र किए हैं। अच्छा, कुरान के अलावा फिर आप पढ़ेंगे, बाइबल भी अल्लाह की किताब है, ज़ाहिर, ज़बूर भी अल्लाह की किताब है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले आप ये पढ़ लें कुरान, ताकि आपको समझ में आए कि क्या सच है क्या झूठ है वहाँ पे, ठीक है, तहकीक करनी पड़ेगी। तो लेकिन किस्से हैं, किस्से अल्लाह ताला ने सारे कुरान में जिक्र किए हैं, सूरह कहफ का किस्सा, किस्से जुल्करनैन का किस्सा, मुख्तलिफ किस्से, किस्से जो हैं वो अल्लाह ताला आपको केस स्टडी के तौर पे बता रहा है कि देखो ऐसे थे लोग, ऐसे हो गए, और फिर उनके साथ क्या हुआ, तुम सुधर जाओ, यानी कि आपको मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दी जा रही हैं, लेकिन हर दौर में, यानी कुरान से ये पता लगता है कि 6-7 दफा तो दुनिया तबाह हुई, आज की कौम पर हवा, ऊंचे ऊंचे लोग कारों में, पहाड़ में घर बना के रहते थे, अल्लाह ताला ने एक सिर्फ वो खोली जंजीर, पाश पाश हो गए। लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे एक जगह पे आया,
फिर कई लोग हैं जिनके ऊपर आग के गोले बरसे हैं। आप जाएं रोम, आज भी आप रोम जाएं, रोम में ऑगस्टस का एक पूरा महल है जो आग के गोले आसमान से गिरे थे, पता जी। हम देखने गए थे तो मेरी तबीयत खराब हो चुकी, हैबत टाइप की जगह, अजाब नाजिल हुआ ना। आग के गोले आसमान से कौन गिराएगा? कहीं से नहीं आ रहे, कोई फेंक नहीं रहा, आसमान से अल्लाह फेंक रहा है। आज के दौर की 700 ईस्वी की बात है, उस दौर की बात है, आज तक मौजूद है वो। यूरोप में तो खाली बिल्डिंगें ही हैं और कुछ नहीं है, वहाँ के बिल्डिंगें देख लो बस। इटली के अंदर, रोम के अंदर दुनिया का पहला स्टेडियम कोलिजियम भी वही है। ऐसे ही आपको मुख्तलिफ किस्म के लोगों ने काम किए और अल्लाह ने उनको तबाह बर्बाद किया, घमंड, मगरूरियत की वजह, हम सब कुछ। जब इंसान तबाह होगा, जब वो अपने आप को कुछ समझना शुरू कर दे कि मैं कुछ हूँ, समझ रहे? ये अल्लाह ने इंसान के अंदर एक मगरूरियत सिर्फ अल्लाह के लिए, तकब्बुर सिर्फ अल्लाह के लिए, हमारे लिए नहीं है। हम तो कुछ है ही नहीं, नथिंग। तो हमें कुरान से पता लगता है कि बातें 6-7 दफा दुनिया तबाह हुई। साइंस ये कहती है दुनिया 21 दफा तबाह हुई। साइंस अपनी जो हिस्टोरियंस पूरी पूरी तहकीकात की उन्होंने कहा ये दुनिया 21 दफा, आपके पास मोहनजोदारो हड़प्पा तो यही मौजूद है, वो तो सिविलाइजेशन यही है, जाके देख लें। 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन, 5000 ईयर्स बैक में इंसान जिंदा थे, इसका मतलब। और ऐसे ही था बिल्कुल जैसे हम अभी हैं। अच्छा, हर दौर में हम अगर पढ़ते हैं ना थोड़ी चीजें, तो हमें पता चलता है कि कोई ना कोई चीज ना टेक्नोलॉजिकल लेवल पे आसमान से बात कर रही है। आज के दौर में हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स, एआई, इसके अंदर आसमान से बातें कर रहे हैं। किसी दौर में मेडिकल साइंसेस आसमान से बातें कर रही है, ठीक है ना? कुरान में जिक्र है ना उनका, क्या नाम है उनका जिसका कुरान में जिक्र है, मेडिकल साइंसेस में टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। जड़ी बूटियों से बातें करती थी कि मैं इस बर्स की दवा हूँ, अल्लाह ने उनको ऐसा बस दिया हुआ था। मेडिकल साइंसेस, और क्या होगा जब जड़ी बूटी कहेगी मैं इस बर्स की दवा हूँ, तो बात खत्म हो गई ना। जड़ी बूटी से बनती सारी दवाइयाँ, या जो खा रहे मेडिसिन, ये सब वहीं से आ रही है। केमिकल बनता कहाँ से? न्यूट्रोसॉटिकल्स दवाएं अलग है, एलोपैथिक दवाएं अलग है, दोनों सेम चीजें। तो हर दौर के अंदर, एक दौर में कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड आसमान से बातें करती है। ऐसी ऐसी कंस्ट्रक्शन है, यूरोप में एक जगह है, आप सोचेंगे ये इंसान तो बना ही नहीं सकता, ये इंसान की बस की बात नहीं है। हंगरी में है, नहीं बुदापेस्ट तो ये इधर है, हंगरी में, हंगरी के करीब है, थोड़ा सा निकल के ऑफ ऑफ है, शहर से दूर है। इतनी बड़ी झील है कि कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि कहाँ से इंसान जाए, और उस झील के बिल्कुल सामने एक कैसल बना हुआ है, तो यहाँ से लेके वो वहां तक, और इतना आर्टफुल है, कलरफुल है वो, कि उसके कलर आज तक नहीं उतरे, येलो ग्रीन रेड लगे हुए, टॉप ऐसे यूं सब बना हुआ है। उस कैसल में जाने के लिए आपको बोट से जाना पड़ता है झील में, फिर जाके रास्ता है, फिर आप ऊपर जाते हैं। बनाया कैसे वो कैसल, समझ से बाहर है, बना कैसे? इतने भारी भारी पत्थर वो लाए कहाँ से, कहाँ से उन्होंने तराशा है उसको, यानी कैसे किसने तराशा होगा उसको, समझ रहे आपको? तो काम किया लोगों ने, पीजो टावर, आईफल टावर, आपके एहराम मिस्र,
आपका क्या नाम है जो ताजमहल, पूरा वो नहीं है, मतलब वंडर ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। ताजमहल आपको पता है ना उसकी बेस क्या है? क्या है उसकी बेस? ताजमहल की बेस क्या है? पानी पर बना हुआ है। ताजमहल पानी पर बना हुआ है ना, उसकी बेस लकड़ी है नीचे, यूं हिलता है जी। ऐसे थोड़ी वंडर ऑफ द वर्ल्ड है वो। और कबर नीचे है, और सूरज की पहली किरण उसमें पड़ती है, और एक उसके अंदर एक ऐसा दिया जल रहा था, इन अंग्रेजों ने खोद खाद के बराबर कर दिया कि उस दिए से, सिर्फ एक दिए से सिर्फ पूरा पौंड का पानी गर्म होता था। तो काम, प्रोजेक्ट्स हुए ना दुनिया में, काम हुए दुनिया में, हर दौर में काम हुआ। अब बात क्या है कि ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आप लोग आए नहीं, कि दुनिया के अंदर जो लोग हैं ना, इंटेलेक्चुअल लोग, बहुत कम है, उनकी तादाद बहुत फ्यू है। हमने एक रेशियो बताया था कि पीएचडी और कंसल्टेंट लोग 0.025% लोग हैं। 5% बैचलर्स होते हैं दुनिया भर में, और 2.3% मास्टर्स किए हुए लोग होते हैं, और पीएचडी किए हुए 0.06%, और कंसल्टेंट और उससे कम 0.025%। अब ये कीमती लोग हैं। एक कंसल्टेंट जो ना, वो कीमती आदमी लोग। यहाँ पाकिस्तान में तो कोई वैल्यू ही नहीं है किसी चीज की, दुनिया भर में एक वैल्यू है, हर आदमी की एक वैल्यू है। हमें ये पता है, मतलब मुझसे अगर कोई टाइम मांगता है ना, यहाँ तो पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, तो बाहर मुझसे टाइम मांगता है, तो मेरी कंसल्टिंग फीस है $250 पर आवर, कम से कम। इससे कम पे मैं टाइम नहीं देता, कि मुझे मुझसे कंसल्ट करना है, डिस्कस करना है अपने पॉइंट्स कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो यूजुअली वो लोग जिन्होंने सैकड़ों प्रोजेक्ट्स किए हैं दुनिया में और काम करके आए, वो कितने कीमती लोग हैं। अब प्रोजेक्ट्स, मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, उसने सर्जरी की है, वो 6000 सर्जरी कर चुका है। एक डॉक्टर है, डॉक्टर गुफरानुल्लाह, हार्ट हार्ट स्पेशलिस्ट सर्जन है। तो मैंने कहा सर, रोज आना आप 5 ऑपरेशन करते हैं, रोज 5 ऑपरेशन, हफ्ते में 25, महीने में 100, 12 महीने में 1200 ऑपरेशन आप करते हैं, बाईपास ऑपरेशन। ठीक है ना? आप कितने साल से ये काम कर रहे हैं? क्या है, 30 साल से। तो उस आदमी ने 40,000 ऑपरेशन कर दिए। कितना कीमती आदमी है। तो मैंने उससे पूछा, आपने क्या फील किया, क्या मरीज एक जैसे होते हैं? कह रहे हैं हर मरीज अलग है, यानी कोई मरीज एक जैसा नहीं है। जब उसको खोलते हैं तो नई कहानी सामने आती है, और बिल्कुल हर कंसल्टेंट के साथ ऐसा ही है। तो बॉडी ने उनसे पूछना शुरू किया कि भाई आप हमें बताएं कि ये जो काम होना है, भाई मोबाइल फोन बंद कर दो आप लोग, वरना आप पढ़ नहीं सकते, या क्लास में आने का बैठने का फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो बॉडी ने ये पूछना शुरू किया उनसे, दुनिया में लोगों को बुलाया, ऐसे लोगों को जो कि जिनका नाम है, जिन्होंने काम किए। अब जैसे चाइना में 40 किलोमीटर का पुल बनाया है, दुनिया का सबसे लंबे तरीन पुल, तो उसको बुलाया ना, भाई आपने कैसे बनाया, जरा लिखवाएं तो सही, हिस्ट्री तो बताएं आप। ऐसे बॉडी ने पीएमआई में पिछले
लोगों से मालूमात की। जब बॉडी बनी 1975 में, पेपर हुआ है 1989 में। कर क्या रही थी वो इतने दिनों तक? वो ये कर रही थी कि कैसे आपका काम हो सकता है। उसने कहा ये काम ऐसे हो सकता है, किसी का नहीं ऐसे हो सकता है, किसी का ऐसे हो सकता है। फाइनली ये पता चला कि ये काम ऐसे हो सकता है। ये एंड टू एंड प्रोसेसेस जो है ये एक दिन में पता नहीं लग गए। देन इट बिकेम अ बेस्ट प्रैक्टिसेस। जब दुनिया में मैंने 2000 जगहों पे हर जगह पे चलवाया और सबने अपनी एफिशिएंसी मुझे भेजी, ये जो गेन भी इतना ज्यादा मुझे मिला, ठीक है ना, तो ऐसे ही नहीं मिल गया, इसकी कोई वैल्यू होगी। जब इसकी वैल्यू सामने आ गई तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या बताती है? तो इट मींस that you actually are going to reduce your maximum errors, ठीक है ना? You are when you are going to reduce the errors, it means you are reducing the cost, क्योंकि एरर का मतलब है कॉस्ट, दोबारा करेंगे आप, ठीक है ना? एरर का मतलब है इम्प्रिसाइजनेस, इम्परफेक्टनेस। तो आप चीजों को बार बार करेंगे, आप उसको ठीक करते रहेंगे, एक से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, टीम ज्यादा लगानी पड़ जाएगी, तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज करेगी। बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब ये है कि आपने जब वो ऑप्ट किया प्रोसेस, तो नंबर वन, एक तो आपको पता चलेगा कि ये काम ऐसे होगा। मैंने कहा रूह अफ़ज़ा का गिलास बनाना है, आपने यूं लिया, गिलास में पानी डाला, यूं भर के 2 चम्मच डाल दिए, या बगैर चम्मच के बोतल से डाल दिया, 2 चम्मच चीनी मिला दी, शरबत तो बन गया? बना नहीं है। लेकिन क्या आपने परफेक्ट शरबत बनाया है, या आपने एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज कर लिया है, या आपने लोएस्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज कर लिया है? तो एक म्याना रवि के साथ आपने मटेरियल यूज करना है। मुझे पता है कंस्ट्रक्शन करनी है मुझे अगर किसी जगह पे, तो मैं सीमेंट बजरी का रेशो क्या रखूं? वो कहता है भाई 2 रेशो तो हम चलाते हैं, एक कॉन्क्रीट रेशो है, एक नॉर्मल रेशो, उससे भी गड़गड़ा आता है, 1:4:8। बहुत अच्छा करना है आपने, बढ़ा ले इसको, ऐसा ही है ना? तो वो तो आप उसकी पावर बढ़ा रहे हैं, लेकिन घर बनाने के लिए एक नॉर्मल स्टैंडर्ड पे आपको काफी है 1:4:8, ठीक है? तो दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिस वही है। शरबत बनाना है तो मैं उसे कहूंगा इतने मिलीलीटर पानी लो, इतने ग्राम रूह अफ़ज़ा ले लो, इतने ग्राम चीनी ले लो, तुम्हारा गिलास तैयार हो जाएगा। अब उसके लिए मुझे जरूरत ही नहीं, मैंने मशीन बना दी, मशीन खुद ही इंग्रेडिएंट लेती है, गिलास निकाल देती है, फटाक लेती है, मिलाती है, निकाल देती है। अकाउंटेबिलिटी है पूरी, ठीक है? तो बेस्ट प्रैक्टिसेस की वजह से दुनिया ये कह रही है कि मैंने फैक्ट्री लगा ली भाई, ये फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री लगाने के बाद तुम एक आदमी थोड़ी काम करेगा, नंबर ऑफ पीपल आर गोइंग टू इन्वॉल्व टू जस्ट डेवलप वन प्रोडक्ट। और हमें ये देखना होगा कि हम कौन सी चीज को ऑप्ट करें। ऐसे ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर जब दुनिया में रिसर्च हुई, तो कई लोगों की रिसर्चेज हैं, मिसाल के तौर पर हर मुल्क की अपनी एक मेथोडोलॉजी मौजूद है। फॉर एग्जांपल
पीएमआई को हम कह रहे हैं पीएमपी, जिसकी आप सर्टिफिकेशन करने आए हो, तो पीएमआई की अपनी मेथडोलॉजी है जो पढ़ना है आप। ऐसी जर्मन की मेथडोलॉजी, जर्मन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे, वो भी इंटरनल ट्रायंगल में आपको पढ़ाऊंगा और उन दोनों का मर्जर भी दिखाऊंगा। ब्रिटिश की अपनी एक जो है ना वो एडवांस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के नाम से जो है वो बॉडी है एपीएम, जिसकी सर्टिफिकेशन प्रिंस 1 प्रिंस 2 है, वो भी दुनिया में मानी जाती है। अभी आ रहे हैं। फिर आपके पास एक बॉडी है ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट करेंगे वो कहलाता है प्लानिंग कमीशनिंग 1 2 3 4, PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 PC 5। काम सब कोई कर रहा है, नाम डिफरेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जो वाकई पीएमआई के बड़े जबरदस्त। अब स्टैंडर्ड के बाद जो चीज है वो है फ्रेमवर्क। हम फ्रेमवर्क किसे कहते हैं? देखो फ्रेमवर्क जो है ना, नॉर्मली तो किसी काम का स्ट्रक्चर होता है। फ्रेमवर्क बनाने का मतलब ये है कि यू आर एक्चुअली डिफाइनिंग सम स्ट्रक्चर टू परफॉर्म दैट वर्क। लेकिन यहाँ पीएमआई फ्रेमवर्क जो है वो खुद अपने प्रोसेसेस, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स और अपने नॉलेज एरियाज दे रहा है, अपने स्टैंडर्ड दे रहा है। तो यहाँ पे जब हम मुख्तलिफ स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करेंगे, हर जगह पे स्टैंडर्ड इस्तेमाल करेंगे, और जाहिर बात है कि ये स्टैंडर्ड एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने कोई इनपुट दी हुई है और पॉसिबल है कि हमें कुछ टाइम पे यहाँ से भी इनपुट देनी पड़े। ओके, मुख्तलिफ इनपुट्स पे हमें ये बात मिले, वी नीड द अश्योरेंस कि अगर मैं ये इनपुट देता हूँ, जो आप सवाल मुझसे कर रहे थे अभी, कि हमें पता कैसे चलेगा कितना, इतनी कॉस्ट, इतनी कम ज़्यादा, ऐसा नहीं हो सकता कि कॉस्ट कम ज़्यादा हो। हमारी एक डिजायर्ड आउटपुट है। जब भी हम कोई एफर्ट, कोई काम, कोई पैसा, कोई रिसोर्सेज लगाते हैं, तो हमारा मकसद उससे कोई ना कोई आउटपुट लेना होता है। ये जो आउटपुट है, जो आपने सोची हुई है कि ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। आपने सोचा मैं पीएमपी कर लूं, पीएमपी ऐसे नहीं हो जाएगा।
उसके लिए कुछ इनपुट देनी पड़ेगी। अगर क्लास में बैठ के मोबाइल फोन यूज करते रहेंगे और ऑफिस में बिजी रहेंगे तो पीएमपी नहीं हो सकता। घर जाके भी सोच रहे कि यार नहीं आज तो यहाँ पढ़ लिया, अब घर कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, तब भी ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ इनपुट्स रिक्वायर्ड है, इसकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करनी पड़ेगी आपको। क्योंकि इस कोर्स में आप ये भी सीखेंगे कि आप अपने ऊपर इसको कैसे अप्लाई करें। ठीक है ना? तो आपको आउटपुट लेने के लिए एक सिस्टम से कई जगह पे इनपुट को देखना पड़ता है कि ये जो इनपुट मैं दे रहा हूँ और ये इनपुट मैं दे रहा हूँ, तो जब मैं इनपुट दे रहा हूँ तो क्या यहाँ से पहली दफा में ये इनपुट सही आ रही है, इस जगह पे आउटपुट ठीक है। पहली आउटपुट चेक करेंगे, फिर दूसरी आउटपुट चेक करेंगे, फिर तीसरी आउटपुट चेक करेंगे। यानी मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर मुख्तलिफ कंट्रोल्स काम कर रहे होंगे। जब तक ये कंट्रोल अगर आपके डिजायर कंट्रोल नहीं है, आपको यहां पर ही आउटपुट नहीं मिल रही तो आगे क्या मिलेगी? तो इसका मतलब ये है कि अगर 2 महीने के बाद पूरा कोर्स खत्म हो गया और आप पहले हफ्ते में कुछ नहीं कर रहे हैं तो आखिरी में क्या करेंगे? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो अगर आपने वाकई पीएमपी करना है और इन 2 महीने में आप समझते हैं कि आपकी तैयारी हो जानी चाहिए, आपको आज से सोचना पड़ेगा कि मेरा फ्रेमवर्क कैसे काम करेगा। क्योंकि बीइंग अ मैनेजर, जब मैं बहुत सारे लोगों से काम लेता हूँ तो मुझे इस बात की फिक्र होती है कि ये काम होगा कि नहीं, क्या मैंने ऐसे लोग रखे हुए हैं जो ये काम कर लेंगे। इसीलिए इंटरव्यू होता है, इसीलिए आपको जांचा जाता है, परखा जाता है। आपकी डिग्री 0 है, आप इंजीनियरिंग करके मेरे पास आ जाए 10,000 दफा, लेकिन आपको कुछ नहीं आता, मैं नहीं रखूंगा। मुझे वो आदमी भी नहीं चाहिए जो खाली बातें कर रहा हूँ, हाँ कर रहा हूँ इधर से उधर, ये नॉलेज वो नॉलेज, और आखिर में काम उससे कुछ नहीं हो रहा, वो भी 0 है मेरे लिए। समझ रहे बात को? हमें वो आदमी चाहिए, वो लोग चाहिए जिससे हमें दिल को तसल्ली हो, अश्योरेंस हो मुझे कि मैं काम देकर आ गया हूँ, काम हो जाएगा। समझ रहे बात को? यानी मुझे इस बात की तसल्ली एज अ मैनेजर होनी चाहिए कि अपने टीम को काम दे दिया तो काम हो जाएगा। लेकिन वो कहेगा सर होगा कैसे? होने के लिए कोई प्रोसेसेस होंगे, मुझे उनको लिख के देने पड़ेंगे कि भाई पहले ये करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे, यहाँ पे चेक कर लेना, फिर ये करें, ये चेक कर लेना, ये करोगे, ये चेक कर लेना, तब आखिर में जाके तुम्हें फाइनल आउटपुट मिलेगी। समझ रहे बात को आप? पहली दफा में आपको खड़ा रहना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम जब चीज होती है ना उसको खड़ा रहना पड़ता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो पीएमआई ने हमें एक फ्रेमवर्क दे दिया, उस फ्रेमवर्क में ये सारी चीजें मौजूद है जिसको 1 बाय 1 हमने पढ़ना है। अब आ जाए कि जैसे हमने यहाँ कहा कि पीएमआई ने कहा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नो कंसर्न विद इंजीनियरिंग। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक अलग दुनिया है। हमारे यहाँ क्या होता है, वही इंजीनियर है, वही प्रोजेक्ट मैनेजर है,
तो एक वक्त में आप एक आदमी से दो काम लेने की कोशिश कर रहे हैं, एंड फाइनली व्हाट हैपन, द प्रोजेक्ट विल बी डिलेड। प्रोजेक्ट मैनेजर का अपना काम है, इंजीनियर्स के अपने काम है। इंजीनियर वो सिपाही है अंदर जो यहाँ काम परफॉर्म कर रहा है और करवा रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर वो आदमी नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजर उनको डील कर रहा है, उनसे उनको चीजें दे रहा है कि ये होना है, ये करना है, ये होना है, ये करना है, ये होना है, ये करना है। अब बात ये कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ना एक जेनेरिक टर्म है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना वो एक जेनेरिक वर्ड है। हर फील्ड में हर जगह में प्रोजेक्ट मैनेजर डिफरेंट है। फार्मास्यूटिकल में उसको कहते हैं प्रोडक्ट मैनेजर, होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बहुत सारी जगह। एफएमसीजी में उसको कहते हैं ब्रांड मैनेजर, होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी सारी जगह। कंस्ट्रक्शन की दुनिया में कंस्ट्रक्शन मैनेजर, चीफ कंस्ट्रक्शन मैनेजर, वो उसकी होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्कूल के अंदर प्रिंसिपल इज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बल्कि क्लास टीचर इज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके ऊपर फिर प्रिंसिपल होता है, वो प्रोग्राम मैनेजर होता है। सो डिफरेंट जगहों पे नाम डिफरेंट है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ जेनेरिक टर्म। अब प्रोजेक्ट किसे कहते हैं? अभी आ रहे उधर आ रहे ओके। प्रोजेक्ट उसको हम कहेंगे जिसमें ये चार चीजें आपको नजर आए। पहली चीज यूनिकनेस, यानी कोई चीज पहली दफा हो रही हो। कोई चीज पहली दफा हो रही हो तो उसको हम देखेंगे। दूसरी चीज टेम्पररी टाइम इंटीवर, प्रोजेक्ट का एक मखसूस टाइम होगा, यानी डेफिनेट स्टार्ट टाइम होगा और एंड टाइम होगा। यानी हमें बताना पड़ेगा कि 26 मार्च 2024 से प्रोजेक्ट शुरू होगा और 30 अप्रैल 2027 को ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। डेफिनेट टाइम होना चाहिए, है कि पैके नहीं होगी। कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज, यानी प्रोजेक्ट के अंदर मुख्तलिफ टाइप की एक्टिविटीज होंगी, एक तरह की एक्टिविटी नहीं होगी। ऐसे प्रोजेक्ट्स जैसे कि प्रोक्योरमेंट भी हो रही है, प्लेसमेंट भी हो रही है, लॉजिस्टिक का काम भी है, इंजीनियरिंग की हायरिंग भी हो रही है, रिक्रूटमेंट भी हो रही है, प्लस डिप्लॉयमेंट के लिए डिजाइनिंग फेज का काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का अलग चीजें हो रही हैं, टेलीकॉम की चीजें अलग हो रही हैं। कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज हो, और किसी प्रोजेक्ट में अगर 200 से कम एक्टिविटीज है वो प्रोजेक्ट नहीं है। एंड फाइनली यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट गोल। कोई खास चीज आपको होती भी नजर आएगी, अब वो चाहे टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बड़ी बड़ी प्लानिंग लेवल के ऊपर काम है,
डिजिटलाइजेशन, आप नाम सुन रहे हैं, डिजिटाइजेशन डिजिटलाइजेशन। अब इसमें से कोई एक चीज कम हो जाती है, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि यार यूनिकनेस नहीं है, बाकी चीजें सही हैं, हो रही हैं, टेम्पररी टाइम में भी काम हो रहा है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज भी हैं, गोल भी है, मगर यूनिकनेस खत्म हो गई। तो अब ये प्रोजेक्ट नहीं रहा। अगर यहाँ पे सिर्फ एक यूनिकनेस खत्म हो गई तो ये बिजनेस ऑपरेशंस बन जाएगा। जब 96 के अंदर 7 में हबीब ऑयल की ईआरपी इंप्लीमेंट की मैंने, हबीब ऑयल खाते ना वो, तो उस जमाने में एक प्लांट आया, ऑटोमेटेड प्लांट, हमारे सामने ही लगा हुआ, बहुत बड़ा प्लांट, लंबी कहानी है उसके अंदर, मैं जानना चाह रहा। प्लांट लग गया, प्लांट को हमें सिर्फ ईआरपी से कनेक्ट करना था डेटा के लिए। जब पहले दिन प्लांट चला, सब लोग खड़े हुए थे, पूरी पूरी फौज खड़ी हुई थी टॉप मैनेजमेंट की, हम समेत। प्लांट चलेगा कैसे, पूरे ऑपरेशन देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक, चढ़ते हुए जा रहे हैं, उतरते हुए आ रहे हैं। इतना ऑटोमेटेड प्लांट था वो कि डब्बे में फिल करके घी, तेल, वैक्स सब निकाल के बाहर कर देते, रैपिंग रैपिंग करके, कोई आदमी काम ही नहीं कर रहा। तो पहले दिन तो बड़ी क्यूरियोसिटी थी यार, डेटा कैसे आ रहा है, भाग रहे हैं सर्वर रूम की तरफ, ये वो चेक कर रहे हैं। फाइनली दूसरे दिन कोई खड़ा हुआ ही नहीं था, चल गया ना एकदम, अब वो चल रहा है। उन्होंने कहा हमें जितनी प्रोडक्शन चाहिए 15 दिन में ही सब कुछ कर देगा, 15 दिन बंद। बोले तो फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो बिजनेस ऑपरेशन प्रोजेक्ट होगा, लेकिन सेकंड टाइम क्या हो जाएगा, बिजनेस। अब अगर टाइम की कैद खत्म हो जाए, मैं कहूँ कोई टाइम ही नहीं, जाओ जितना जो करना है करो, सही है, जो करना है करो, टाइम की कोई कैद नहीं है। तो ऐसी कौन सी जगह है भाई या टाइम की कैद नहीं है, यूनिक काम भी हो रहा है, कॉम्प्लेक्स गोल भी हो रहा है, तो फिर वो रिसर्च बन जाएगी, वो प्रोजेक्ट नहीं रहेगा। क्योंकि रिसर्च के अंदर टाइम की कोई कैद नहीं है, एनी हाउ आउटपुट चाहिए, बाद दफा नहीं मिलता फिर भी पैसे लगाते रहते हैं, क्योंकि वो नीड होती है, वो इंसान की या उस मुल्क की नीड है। वैक्सीन बननी है, दुनिया पैसे लगा रही है, मर्जर्स हो रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं, किस तरीके से इंसान को उस मोहलिक बीमारी से बचा लें। डिफेंस में कोई काम हो रहा है, वर्किंग हो रही है, पैसा लग रहा है। और अगर कहीं पर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज ही नहीं है, क्या नाम है तुम्हारा, आशिर, मैंने कहा आशिर इस कमरे में आज तक किसी ने बैडमिंटन नहीं खेला है, तो रैकेट लेके वहां खड़े हो, मैं रैकेट लेके खड़े हो, शटल वहां से फेंको यहाँ पे। आज पहली दफा हमने काम किया टेम्पररी टाइम में, तो ये प्रोजेक्ट हो गया नहीं, प्रोजेक्ट नहीं हुआ, ये एक टास्क हो गया, ठीक है। तो प्रोजेक्ट की डेफिनेशन इन चार चीजों में बेस करती है। कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज है कि कई तरह के काम हो रहे हैं, तो क्या वो प्रोजेक्ट नहीं होगा ना, वो तो टास्क हो गया। ये चारों चीजें होनी जरूरी है, लाजमी। अब एक सवाल मेरा,
बुर्ज खलीफा या बुर्ज अल अरब मेरे को यार कराची में बनाना है, ठीक है, साहिल समुंदर पे खड़ा करेंगे, तो क्या वो प्रोजेक्ट होगा या नहीं होगा? इस डेफिनेशन के मुताबिक क्या कह रहा हूँ? नहीं होंगी? क्या हो गया भाई? तो कंस्ट्रक्शन में कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी नहीं होती है? कंस्ट्रक्शन खुद ब खुद हो जाएगी बगैर प्रोक्योरमेंट के, बगैर लोगों के। जब आप प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे ना तो आपको सब कुछ खुद करना होगा। लोग भी आप रिक्रूट करेंगे, पैसा भी आप अरेंज करेंगे, कॉस्टिंग भी आप करेंगे, प्लानिंग भी आप करेंगे, डिप्लॉयमेंट भी आप करेंगे। हैं? इसीलिए होता है ना कि ही इज रिस्पॉन्सिबल, सिर्फ कॉस्ट छोड़ के, कि पैसा, अब कंपनी कहती है हमने हायर आपको इसलिए किया है कि पैसा हम लगाएंगे, काम आप कराएंगे, आप बताएं कि कैसे कैसे लोग चाहिए आपको, क्या सामान चाहिए, क्या चीजें चाहिए। तो ऐसा तो हो ही नहीं था कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज ना हो। हाँ, ये बात है, यूनिकनेस नहीं होगी, क्योंकि बुर्ज अरब जैसी एग्जैक्टली चीज आप यहाँ बनाने जा रहे हो तो प्रोजेक्ट नहीं होगा। पीजो टावर एक्चुअली कहाँ है पता है? पीजो टावर जो टेढ़ा बना हुआ है, इटली में, प्याजो में, और उसको अमेरिका में एज इट इज बनाया गया है? बनाया टेढ़ा, तो क्या प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट था कि नहीं था? एफल टावर कहाँ है? पेरिस में। यहाँ कितने एफल टावर खड़े हो गए हमारे पास? एक लाहौर में, एक यहाँ बहरी टाउन में, यहाँ बनाया, यही तो है बहरी टाउन में। तो एज इट इज बनाया है, वो उतनी उसकी वो है, हाइट वाइट सब कुछ, पता है आपको ये बात? पेरिस इतना है भाई, क्या हो गया? इतना ही बड़ा है पेरिस का भी। नहीं, इतना ही ऊंचा है, वो भी उतना ही ऊंचा है, तो मशहूर कर दिया उन्होंने। जैसे लंदन ब्रिज मशहूर कर दिया, आप जाके खड़ो जाए, मैं तो 50 दफा खड़ा हूँ, क्या उसमें खास बात है मेरी समझ से बाहर है। वो बिग बैन है, क्लॉक, बिग बैन, वो पार्लियामेंट के बराबर में, सेंट्रल लंदन के अंदर। ये लंदन ब्रिज है जो कि रिवर के ऊपर से जाता है, ठीक है? तो रेप्लिकेट हो रहे हैं ना प्रोजेक्ट, अगर वो भी रेप्लिकेट होगा लेकिन वो उस जगह के लिए यूनिक हो जाएगा। अगर मैं बुर्ज खलीफा पाकिस्तान में बनाऊं तो बुर्ज खलीफा भी जो है वो मेरे लिए प्रोजेक्ट इसलिए होगा कि इन्वायरमेंट चेंज हो गया है। मैं कितने कंसल्टेंट को बुला लूंगा? एक, दो, चार, उसमें तो 2000 लेबर लगी, वेंडर सेम नहीं होंगे, पैसे लगाने वाले सेम नहीं होंगे, काम करने का स्टाइल सेम नहीं होगा, पेस डिफरेंट होगा। तो इट मीन्स कि आपके पास प्रोजेक्ट वो होगा, समझ रहे आप? यूनिकनेस सिर्फ उस जगह पर है अगर वो सेम जगह है। अगर मैं कहूं आपसे कि ये PABX जो होता है, इंटरनल फोन सिस्टम, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ 2000 यूनिट का मुझे लगाना है,
2000 नोड्स का। तो पाकिस्तान में 2 से 3 कंपनियां ये काम करती है। एल्काटेल है ही नहीं अब यहाँ। सीमेंट्स शायद लगा रही है, आई डोंट नो लगा रही कि लगा रही, वो चली गई, रह गई पैनासोनिक, वो लगाती है। एक ही इक्विपमेंट हर कंपनी में इंस्टॉल करते हैं, क्या उनके लिए प्रोजेक्ट नहीं है? इसलिए प्रोजेक्ट है कि जब भी क्लाइंट चेंज हो जाएगा आपका पूरा एनी हाउ चीजें चेंज हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब आ जाइए सिंपल मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, हाउ यू कैन डिफाइन द मैनेजमेंट। मैनेज क्या होता है? अरेंजमेंट करना, ठीक है, और तो हम कहते हैं कि टू कंप्लीट एनी जॉब, ठीक है, विद इन दी अवेलेबल रिसोर्सेस। हमें कोई चीज को विद इन द रिसोर्सेस करके दिखाना है। अब रिसोर्सेस क्या है? ये तो मैनेजमेंट है। रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज टाइम है, रिसोर्सेज कॉस्ट है, रिसोर्सेज आपके पास इक्विपमेंट मटेरियल है, टीम है, ठीक है, ये रिसोर्सेज। इसी रिसोर्सेज में अगर आप वो काम कर लेते हैं तो आप अच्छे मैनेजर हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आप मैनेजर नहीं है। फिर वो ये होगा कि नॉर्मल तेल होगा तो राजा नाचेगी। सुना है ना ये मशहूर वाकया, 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी। पूरे इंडिया में बड़े सगीर मशहूर है, राधा क्या नाचती है, राधा क्या नाचती है। बादशाह ने बुलवा लिया, बुलाओ राधा को, राजा भाई नाचो, कह नहीं 9 मन तेल डालो फिर नाचती है। तो ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो ऐसे लोग जिनको कुछ नहीं करना वो 9 मन तेल वाला काम करते हैं। जिनको करना है वो छोटी सी जगह में सब कुछ कर देते हैं। एडिसन, स्कूल से भागा हुआ बच्चा। आइंस्टाइन, स्कूल का सबसे घटिया तरीन बच्चा। छोटी सी लेबोरेटरी में एडिसन की 1000 से ज्यादा इजादात हैं। आप तो सिर्फ बल्ब के बारे में सुनते रहते हैं। तो जिसको करना होता है वो अपनी ही रिसोर्सेज में, वो जेवलिन थ्रो वाला पाकिस्तान का देखा है ना जिसने फेंकी है, कहां से निकल गया है वो लड़की जो एथलीट में फर्स्ट आई, रनर रनर, कहां से निकल गया? उसी गांव के टूटे फूटे रास्ते भाग रही है। ना कोई जिम्नेजियम है, ना कोई ट्रूप है, ना कोई जगह है। जिसको करना है ना वो कर जाए अपने रिसोर्सेज में, जिसको नहीं करना है उसके लिए 100 बहाने हैं। तो मैनेजर वो है जो अपने रिसोर्सेज में काम करके दिखाए। अब रिसोर्सेज ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ नहीं दे, क्या भाई नहीं जाओ, कुछ नहीं दे रही, समुद्र पार करो तुम, ऐसा नहीं है। आपको इतने रिसोर्सेज मिले हुए हैं कि काम हो सकता है। टू कंप्लीट द जॉब विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है। आपने भी अच्छी बात की कि अरेंजमेंट ऑफ द थिंग्स, फिर वो उसके अंदर है। फिर मजीद
चीजें हैं मैनेजमेंट की जो अंदर आएंगी। दूसरी डेफिनेशन जो मैनेजमेंट की है, दैट इज व्हाट, कॉमन सेंस, विच इज वेरी अनकॉमन। अल्लाह ताला ने इंसान को एक बाकायदा तौर पर एक हिस्स दी है कि वो छोटी सी भी जगह को खूबसूरत बना सकता है। ब्यूटी की तारीफ जो है ना, ब्यूटी की मैं समझाऊं, ब्यूटीफुलनेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्यूटीफुलनेस? टू अरेंज द थिंग्स इन गुड मैनर टू बिकम ब्यूटीफुल। आप खूबसूरत नजर आना चाहते हैं, आप अपनी जगह को खूबसूरत दिखाना चाहते हैं, अरेंज कर दीजिए। आप देख रहे हैं क्लासरूम स्टाइल, बड़े बड़े बोर्ड रूम्स में अभी नहीं देखा होगा आप। जिस बंदे से मैंने मेज बनवाई थी ना, वो एयरफोर्स के जहाज बनाता है। जब एयरफोर्स के जहाज बनते हैं तो उसका मॉडल बनाता है। मेरा दोस्त है, इंजीनियर है वो। एक एक चीज यानी मॉडल की, वो जहाज की, फाइटर प्लेन्स की वो डिजाइन करता था, फिर उसके कंपोनेंट डिजाइन उसको मैं जोड़ के फिर उसको पूरा मॉडल खड़ा किया जाता था कि ये प्रेजेंटेशन देने के लिए खाली कि ये कैसे काम करेगा। उसने बनाई इमेज। आज की इमेज नहीं है ये, कितने साल हो गए इसमें, इसको आपको अंदाजा नहीं है। कितने साल होंगे हुए? 20 साल से ऊपर। ऐसी लोहा लाट मेज है, और ये स्टाइल्स उसने इस कमरे के हिसाब से फिट की थी। ये पहले हमारा बोर्ड रूम था, ये पहले सेंटर नहीं था, ये हमारा हेड ऑफिस है। अब बाहर आने को देखो 3D ग्रुप लिखा हुआ है। पहले हमारे सारे नीपा पे, जौहर में, मुख्तलिफ जगहों पे सेंटर थे, मैंने सब बंद कर दिए कोविड में। 45 रूम का सेंटर हमारा नीपा पे था, सब बंद किया। फिर हम यहीं पर सबने ऑनलाइन आ गए लोग, अब ऑनलाइन ही दुनिया पढ़ रही है तो हमने सेट किया। लेकिन ये रूम बेस शुरू से यहाँ पे ऐसे ही थी। ऑफिस के लोगों को हमने शिफ्ट कर दिया शारा फैसल में, और बराबर में एक बिल्डिंग है यहाँ पे आगे, वहाँ शिफ्ट किया। तो बताने का मकसद ये है, हाउ यू आर गोइंग टू अरेंज एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इन द मिनिमम रिसोर्सेस एंड यू कैन परफॉर्म इट। हाँ, अब आप ये नहीं कि आप आसमान डिजाइन कर लें और कहें यार मेरे पास तो इतना सा है, अब ये भी बेवकूफ़ी है। आप डिजाइन वो करें जो आप कर सकते हैं, ठीक है ना? तो अब आ जाइए, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अब क्या होती है? व्हाट इज दी, प्रोजेक्ट की बात हो गई, मैनेजमेंट की बात हो गई। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ये तो हमने बात कर ली। टेम्परेरी अंडरटेकन का यूनिक प्रोडक्ट सर्विस। द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्चुअली इज एन एप्लीकेशन of knowledge, skills, tools, and techniques to project activities in order to meet or exceed stakeholder needs and expectations. क्या मतलब है? The application of knowledge, यानी आपकी जो भी सलाहियत है उसको अप्लाई करना है आपको। With skills, हाथ से काम करना जानते हो। You must know what are the tools, कौन कौन से टूल कहाँ एप्लीकेबल हैं, टेक्निक्स टू प्रोजेक्ट एक्टिविटीज जो आप काम कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू मीट और एक्सीड, किसके लिए? उन स्टेक होल्डर्स के लिए जो वो चाहते हैं, कभी कम कभी ज्यादा। और कौन है स्टेक होल्डर? एवरी पर्सन हु इज अटैच्ड और एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट। चाहे वो आपकी लेबर है, चाहे आपके इंजीनियर हैं, चाहे आपके स्पॉन्सर्स हैं, चाहे आपके फाइनेंशियल स्पॉन्सर्स हैं, चाहे आपके वेंडर्स हैं, चाहे आपके पार्टनर्स हैं, चाहे आपके एफिलिएट्स हैं। Everybody is your stakeholder. Individuals and organization involved in or affected by the project activity. Okay? बात क्लियर हो गई? तो इसका मतलब है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा डोमेन है। और अगर आप कहीं के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं
तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। आपका काम है कि आप उन तमाम चीजों की अश्योरेंस इंश्योरिटी चेक कर लें कि यहां पर क्या क्या चाहिए होगा, कब कब, कितने दिन से कितने दिन का ये टाइम है और क्या क्या चाहिए होगा। PMI give us 5 major processes of the project management: initiating, planning, executing, controlling and closing। इसको हम डिस्कस करेंगे एक एक चीज को, क्योंकि ये 5 मेजर प्रोसेसेस हैं और अब इन मेजर प्रोसेसेस के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस हैं और 10 नॉलेज एरियाज। 5 this, ठीक है। सो 10 नॉलेज एरियाज खोल खोल के पढ़ने हैं और यही समझने हैं आपने। प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे होते हैं? मार्केट डिमांड से, ऑर्गेनाइजेशन की नीड से, कस्टमर के रिक्वेस्ट से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से, लीगल रिक्वायरमेंट से, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट से, सोशल नीड से, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस नीड से, कॉम्पिटिटिव फोर्सेस की वजह से, पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से, न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से, स्टेक होल्डर डिमांड्स की वजह से एंड बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट और मटेरियल इश्यूज की वजह से प्रोजेक्ट ऐसे क्रिएट होते हैं मार्केट। बिग प्रोजेक्ट्स होते ही गवर्नमेंट की वजह से। गवर्नमेंट वो जगह है जहां के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जहां पे काम मिलता है। गुड प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है? वो आदमी अगर कहीं का प्रोजेक्ट मैनेजर है, जैसे आमतौर पर कंस्ट्रक्शन की दुनिया में सिविल इंजीनियर को बुलाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। वो बुलाते हैं इसलिए कि वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं बल्कि वो टेक्निकली चीजों को भी जानता होगा, तो चीजों के अंदर हेरा फेरी नहीं हो सकेगी। फर्दर ही मस्ट नो द बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी स्किल्स, he must have a good communication skills, he must have to know the organization and planning skills, he must has to have conflict the management skills, he has to know how to negotiate with the vendors, with the people, with the bosses, with the subordinates, he must have a leadership skills, he must have a team building and motivation skills। अब नॉर्मली जो मैनेजमेंट की इस दौर में डेफिनेशन दी गई, वैसे तो हमारे पास हमारा मसला ये है कि हमें फंसा दिया गया ऐसे लोगों में, ऐसे मौलानाओं में जो सिर्फ एक तरफ बात करते रहते हैं, एक वन वे वाज हो रहा है, आप कोई सवाल नहीं कर सकते, जो वो कह रहा है सुने चले जा रहे हैं आप। अब बात यह कि मैक्सिमम आम तो जाहिल है, उसको पता ही नहीं, तो वो जो सुन रहे हैं वो यकीन कर रहे हैं। गांव देहातों में आप जाएंगे तो बहुत बुरा हाल है, मौलाना पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, वो खुद नहीं पढ़ा लिखा है, सो क्या क्या वो बोल रहा हो। तो हमारे इस्लाम का एक मजाक बन गया। इस्लाम एक्चुअली इज अ टोटल सिस्टम टू लिव इन दिस वर्ल्ड गिविंग बाय द गॉड। इस्लाम मजहब नहीं, दीन है। दीन, दीन का मतलब है टोटल सिनेरियोस। आप कितने दिन नमाज में कितना टाइम लेते हैं? ऑल टुगेदर अगर आप सारी नमाजें पढ़ भी लें, आधा घंटे ज्यादा नहीं लगेगा आपको। कुरान की एक आयत पढ़ लें, एक मिनट भी नहीं लगेगा, खत्म हो गया अल्लाह का मामला। बाकी मामले कहाँ गए? तो अल्लाह ने कहा ये मामला यहां तक नहीं रुका हुआ है। 70% से ज्यादा अल्लाह ने आपको सिस्टम
दिए हैं दुनिया में गुजारने के। 40 साल की उम्र तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग सादिक अमीन कहते थे। कैरेक्टर, उनका सिस्टम, उनका डिजाइन। 25 साल से वो तिजारत कर रहे थे, बेहतरीन तिजारत के आदमी थे। समझ रहे बात को? और सक्सेसफुल कैसे हुए अगर मैनेजमेंट नहीं थी तो? इसका मतलब ये कि जिंदगी भी बड़ी जबरदस्त तरीके से गुजारी, तिजारत भी की, रोजगार भी किया, काम भी किया। तो इस्लाम हमें हर चीज देता है, लेकिन हमें हटा दिया गया उस जगह से। जैसे क्रिश्चियंस के पास जाएंगे ना, उनको कुछ नहीं पता कि क्रिश्चियनिटी होती है, एक्चुअली क्रिश्चियनिटी कुछ पता ही नहीं होता। चर्च जा तो रहे, लेकिन दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। ऐसे ही हमारे मुल्क में, हमारे पास भी, चाहे वो किसी भी तबके ताल्लुक हो, अहले तशय्युं हो, अहले सुन्नी हो, असल इस्लाम को तो पता ही नहीं होता। सबसे ज़्यादा गलत अहले तशय्युं को कर दिया है, वो अलग तरीकों चल रहे हैं। और सुन्नियों में माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो बात ये है कि हमें पढ़ने की ज़रूरत है। हम किसी को गलत नहीं कह रहे, हमें खुद पढ़ने की जरूरत। किताब मौजूद है, चीज़ें पढ़ो, उठा के कुरान पढ़ो भाई, तर्जुमा पढ़ो, सीधा सीधा सब कुछ लिखा हुआ है। फिर हदीस पढ़ लो, समझ में आ जाएगी चीज़ें। ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं कि हम सब बड़ी बड़ी साइंस की और दूसरी चीज़ों में पढ़ रहे हैं। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन अल्लाह ने बयान कर दी। अल्लाह ताला बार बार समझा रहा है कि देखो, हमने ये चांद, सूरज, सितारे, आसमान, ये सब 6 दिन में बनाया, और फिर सबको हुक्म दिया, सब अपने ऑर्डर पर है। इसका मतलब कोई चीज बगैर सिस्टम की नहीं बनाई अल्लाह ने। अल्लाह ने कहा मैं एक दिन बैठा हुआ सोच रहा था, प्लान कर रहा था। अल्लाह ने प्लान किया, पहले सोच रहा था, फिर अपने नूर से 4 नूर पैदा किए और एक कलम बनाया। कलम को हुक्म दिया शुरू से आखिर तक सब लिख दे लोहे महफूज के अंदर। वो लिख नहीं सका, अल्लाह मेरी सकत नहीं है। अल्लाह तेरे यूनिस की मछली की कसम, कलम का देखे ना वो एक मछली टाइप का बन जाता है आगे, तो कट गया, तो उसे लिखना शुरू किया और गिनाइस किया अल्लाह ने। कायनात को पैदा किया, सारे चरण परन इंसान से पहले हर चीज इस दुनिया में उतारी अल्लाह ने। पानी उतारा, लोहा उतारा, जानवर उतारे, पैदा किए, फिर इस दुनिया को एग्जीक्यूट किया। और कंट्रोल भी हो रही है दुनिया, कंट्रोलिंग सिस्टम में चल रही है। कंट्रोल तो आउट हो जाएगा कयामत में, धमाका हो जाएगा। तो ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, एग्जीक्यूटिंग, कंट्रोलिंग सब हमारे कॉमन सेंस की चीजें, और हमें इस्लाम ने भी बताई थी। लेकिन अब हमें कौन बता रहा है? मैकेंजी। इस दौर में हमें कौन बता रहा है? मैकेंजी बता रहा है कि जी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, एग्जीक्यूटिंग, कंट्रोलिंग करेंगे आप तो। अब आप देखें कि हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, एग्जीक्यूटिंग, कंट्रोलिंग में, एग्जीक्यूटिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, 3 बड़े हिस्से हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी है। जो पीएमआई के प्रोसेस है वो 3 यहाँ भी। तो इसका मतलब कि अगर आपने अच्छी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करनी है तो जनरल मैनेजमेंट का पता होना चाहिए आपको। अब प्रोजेक्ट में टेक्निकल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रुप्स होंगे। ठीक है, बात यहां तक क्लियर है? अब जनाब, मिसाल के तौर पर प्रोजेक्ट की बात हो गई। एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि आपके मुख्तलिफ, आपके कैसे आपको प्रोजेक्ट मिलता है। अब आप इसको सुन लिए। बॉस ने बुलाया, अशर कल से तुम ये काम देखना शुरू कर दो, सारी चीजें आपको बता दी होती है। तो पता है ना तुम्हें? हाँ सर मैं देख लूंगा। प्रोजेक्ट आपको असाइन हो गया, यू आर द प्रोजेक्ट मैनेजर नाउ।
तो ड्यूरिंग द जॉब आपको मुख्तलिफ जो असाइनमेंट मिलते हैं इज एक्चुअली योर प्रोजेक्ट। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे 5 असाइनमेंट खड़े हो जाएं, तो वो उसका नाम बन जाता है प्रोग्राम। और इस जगह को कहते हैं, फिर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं, प्रोग्राम मैनेजमेंट। और प्रोग्राम मैनेजमेंट को आमतौर पर एंटरप्राइज मैनेजमेंट भी कहा जाता है। अब अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रोग्राम खुलना शुरू हो जाए, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन में 5 प्रोग्राम बन जाए, तो इस जगह को फिर हम कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और अगर आपके पास पांच पोर्टफोलियो खुल जाए, तो फिर उसको कहते हैं ग्रुप पोर्टफोलियो। समझ रहे? यानी कि आपके पास इससे बड़ी कंपनी नहीं हो सकती। अगर मेरे पास एक ग्रुप पोर्टफोलियो है तो 5 पोर्टफोलियो, हर पोर्टफोलियो में 5 प्रोग्राम, यानी 5 प्रोजेक्ट इसके पास, तो ये 5 5 5 25 यहाँ हो गए। एक प्रोग्राम मैनेजर 25 प्रोजेक्ट देख रहा है, सॉरी एक प्रोग्रामर 5 प्रोजेक्ट देख रहा है, ठीक है ना। एक प्रोग्राम मैनेजर 5 प्रोजेक्ट देख रहा है, एक पोर्टफोलियो मैनेजर 10 कहां से देख रहा है यार, 5 ग्रुप है 125, ठीक है, 25 सॉरी, यहाँ 5 देख रहा है और यहाँ पर 25 देख रहा है, और एक ग्रुप पोर्टफोलियो 125 देख रहा है। तो जब मैं बाहर वहां काम कर रहा था तो मैं एट अ टाइम, मेरे पास पोर्टफोलियो ज्यादा थे, यानी मेरे पास 5 पोर्टफोलियो नहीं थे, मेरे पास 7 8 पोर्टफोलियो रहते थे। तो एट अ टाइम 175 168 प्रोजेक्ट देख रहा हूँ। अब हर लेवल पे जॉब डिफरेंट है, रोल डिफरेंट हो जाता है आपका, ठीक है। जब प्रोग्राम मैनेजर की पीएमआई पे सर्टिफिकेशन डिफरेंट है। देख रहे हैं, पीएमपी प्रोग्राम मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फिर बाकी जो है वो अलग है। रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर है, एजाइल है, वो तो बहुत सारी इन्होंने खोल दी। इन सर्टिफिकेशंस पे डिफरेंट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट हो जाएगी। अभी आप पीएमपी करने आए, फ्रेश ग्रेजुएट सीएपीएम करेगा, सही है। और
यहीं पर आप एक अपनी रजिस्ट्रेशन कर ले, फ्री है फिलहाल अभी, यहाँ से अपने आप को रजिस्टर कर लो, लॉगिन बना लो। लॉगिन बनाने के बाद फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। अगर पेपर देना है तो अभी किस तरह से पेपर हो सकता है वो बता दूं। तो प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम, पोर्टफोलियो और ग्रुप पोर्टफोलियो। अब कुछ जगहों पे क्योंकि ये वर्ड ऐसा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजर, ये ज्यादातर ये कंस्ट्रक्शन की दुनिया में लिया जाता है। हर जगह प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं पुकारा जा रहा, जैसे मैंने अभी नाम बताया आपको, प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर। अब बहरिया टाउन प्रोजेक्ट, ओ भाई बहरिया टाउन प्रोजेक्ट नहीं है, बहरिया टाउन तो एक पूरा क्या है वो तो ग्रुप पोर्टफोलियो है। समझ रहे, एक ग्रुप पोर्टफोलियो है ना, वो तो एक चीज ही, एक दुनिया है वहां पे तो। लेकिन हम बहरिया टाउन प्रोजेक्ट पकड़ रहे हैं, प्रोजेक्ट आ गया जी बहरिया टाउन प्रोजेक्ट। तो बाल जगहों पे हम बहुत सारे जार्गन्स के तौर पर चीजों को यूज करते हैं। जैसे हमारी कंपनी में दो तीन जुमले यूज होते थे। वो स्टीव गुजर रहा करे, डू यू हैव बर्नर? नो। अब क्या मतलब है इसका? क्या मुझसे पूछता उधर का तुम्हारा चूल्हा है? डू यू हैव बर्नर? वो मुझसे पूछ रहा है तुम्हारे पास सीडी राइटर है? वो ये पूछता हुआ जा रहा है मुझसे, डू यू हैव अ बर्नर, क्योंकि बर्न करते हैं। अब एक और जुमला हमारे यहाँ यूज होता था, हे मिस्टर कम हियर, गो एंड बर्न इट। अब मैंने लड़के को बुलाया, मैंने कहा यार उसको बर्न कर दो, तो क्या वो जला दे? तो वो इसका मतलब था फोटोकॉपी करा के ले आओ। ठीक है, कई जगह पे बुलाया था जेरोक्स इट, जेरोक्स की मशीन थी सबसे पहले, फोटोकॉपी करते थे। बर्न इट, जलाती तो है वो, लाइट। टेक्निकल वर्ड को जार्गन बना दिया, ऐसे ही प्रोजेक्ट आ गया जार्गन। हालांकि कंस्ट्रक्शन का वर्ड, कंस्ट्रक्शन की दुनिया में कोई प्रोजेक्ट प्रोग्राम से कम होता ही नहीं। वहाँ पे सिविल वर्क अलग है, एमईपी वर्क अलग है, वुड वर्क अलग है, फिनिशिंग अलग है। ठीक है, तो मुख्तलिफ चीज़ें अलग अलग, तो वहाँ पे सब प्रोजेक्ट्स का वर्ड होता है, प्रोजेक्ट, सब प्रोजेक्ट्स। तो ये चीज़ें हमने आज जो समझी है। अब पीएमआई के नॉलेज एरियाज के बाद पीएमआई ने तीन हिस्सों में ब्रेक कर दी चीज़ें पीएमपी के लिए। पहला हिस्सा पीपल, जिसके बारे में हम यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत कुछ, लोग, really important। Then processes, ओके, विदाउट प्रोसेस कुछ नहीं होगा, लोगों के साथ प्रोसेस चाहिए। तो प्रोसेस किस किस चैप्टर में ये हमें जिक्र हुआ है? तो प्रोसेस ही प्रोसेस, एंड फाइनली वी हैव अ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्वेश्चन आपके पीपल से 42%, प्रोसेस से 50 और बिजनेस एनवायरनमेंट से 8% आएंगे। पहले 200 क्वेश्चन थे, अब 180 क्वेश्चन हो गए। 4 घंटे का पेपर है। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर ले, पास करना मुश्किल नहीं है। एमसीक्यू में 70%, 5%। ठीक है,
25% में तो ये कि आप गलत भी कर सकते हैं। दो 180 में से कितने सवाल गलत हो जाएंगे आपके? 50 के करीब, 40 45 के करीब। 130 पास करना कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर दूंगा, पढ़ाऊंगा, एक एक चीज दूंगा, प्रैक्टिस करते जाए इसको। ओके, सो आज जो बातें हमने की हैं सारी,